जी स्वाति। I, Swati Jain, National Joint Secretary, SPSR, on behalf of SPSR, welcome you all to attend a national webinar on the topic Obesity, Treatment via Diet Management and Homeopathy by noteworthy speaker Dr. Asif Ali. Let me extend a hand of gratefulness to highly learned Professor Dr. Shashi Alok, President SPSR, to have given me an opportunity to transact a highly informative webinar on a much sought after topic today. Welcome, Dr. Shashi. I would also like to welcome our eminent speaker, Dr. Asif Ali, Chief Medical Officer at Clinica Medica, Bhopal, Madhya Pradesh. SPSR feels highly honored to have again got an opportunity to share a part of your vast knowledge today, sir. I also heartily welcome the entire team of SPSR, Secretary SPSR, Mrs. Monica Sabharwal, National Joint Secretary SPSR, and all other dignitaries of SPSR who are diligently working to strengthen the foundation of SPSR. Since this webinar is organized by SPSR, I would like to elucidate its purpose. Society of Pharmaceutical Sciences and Research is an educational, non-profit organization. It is committed to encourage the study and practice of pharmacy education and research. The mission of SPSR is to promote the pharmaceutical sciences in all aspects. Our vision is to promote and advance the science of pharmacy and its applications in India. We look forward to promoting and facilitating the acquisition, dissemination, and exchange of pharmacy knowledge and information about the practice of pharmacy and pharmaceutical services. Now I request Dr. Shashi Alok to kindly take the lead. Over to you, Dr. Shashi. Thank you, Mrs. Swati. A very good afternoon to all. Myself, Dr. Shashi Alok, President SPSR. On the behalf of Society of Pharmaceutical Sciences and Research, I welcome Dr. Asif Ali, Chief Medical Officer, Clinica Medica, Bhopal. I also welcome to Mrs. Monica Sabharwal, Secretary SPSR, today's webinar moderator, Mrs. Swati Jain, Joint Secretary SPSR, and all the virtual national and international participants who are present here in this SPSR webinar. So viewers, SPSR today going to organize a webinar on obesity treatment by diet management and homeopathy. So as we know that as obesity is a complex disease involving an excessive amount of body fat, obesity is not just a cosmetic concern, it is a medical problem that increases your risk of other diseases and health problems such as heart disease, diabetes, high blood pressure, and certain cancers. There are many reasons why some people have difficulty avoiding obesity. Usually, obesity results from combination of inherited factors combined with the environmental and personal diet and exercise choices. The good news is that even modest weight loss can improve or prevent the health problem associated with obesity. Dietary change, increased physical activity, and behavior changes can help for loss weight. Prescription medication and weight loss procedure are additional option for treating obesity. So today we have with very renowned speaker for this enlightening talks. I again welcome to Honorable Speaker Dr. Asif Ali, and thank you for accepting our invitation for this webinar. Now I would like to request to Mrs. Swati Jain kindly proceed further. Over to you, Swati Jain. Thank you so much, Dr. Shashi. For the ones who have not been fortunate to have heard him before, I would like to read out Sir's profile for them. Dr. Asif has done his bachelor's in homeopathy medical surgery, after which he pursued a specialized course in fundamental critical care support from Chirayu Medical College. He has worked for 5 years in emergency services. He has conducted various stress management programs and various weight management programs in Adam Homeopathic Virtual Clinic. He has also worked in Dr. Batra's Private Limited for 5 consecutive years as Chief Homeopathic Consultant. Dr. Asif did excellent job in COVID era and was awarded Certificate of Merit from Madhya Pradesh State Council of Homeopathy for his outstanding contributions in this field. Dr. Asif Ali is a recipient of multiple WOW Service Awards for excellence in patient service and patient compliance. He is an eminent speaker and has delivered various webinars. He has been invited twice by SPSR for sharing his profound knowledge in the field of medicine and has been awarded Certificate of Appreciation from SPSR. Currently, Dr. Asif is working as Chief Medical Officer at Clinica Medica Homeopathy at Bhopal with his team of doctors. Sir's magnificent personality itself speaks volumes about the expertise he has, and that's the reason why we have got a staggering figure of over 2,000 registrations today, not only from India, but from more than 26 different parts of the world like Azerbaijan, Indonesia, Nigeria, Algeria, Macau, Ethiopia, Iraq, Egypt, Nepal, Philippines, Romania, Albania, Ukraine, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, UAE,
North Macedonia, Tanzania, Bhutan, Germany, Syria, etc. So viewers, regarding today's webinar topic, obesity is a medical condition that occurs when a person carries excess weight or body fat that might affect his or her health. A doctor will usually suggest that a person has obesity if he has high body mass index. Obesity is diagnosed when the BMI is 30 or higher. Obesity is not just a cosmetic concern, but if a person is obese, then he can increase his risk of developing several health conditions, including metabolic syndrome, arthritis, and some other types of cancer. Metabolic syndrome involves a collection of issues such as high blood pressure, type 2 diabetes, and cardiovascular problems. Obesity is a result of sedentary lifestyle, consuming too many calories, not sleeping enough, endocrine disruptors, certain medications, hereditary, etc. SPSR feels serendipitous to get a chance to know about this topic through illustrious speaker, Dr. Asif Ali, with perspicacious knowledge in this area. Over to you, sir. First of all, I would like to thank Dr. Shashi Alok, President of SPSR, Mrs. Swati Jain, National Joint Secretary SPSR, and all SPSR team. आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। जैसा कि कहा जाता है 1000 बीमारी की एक दवा, वैसे ही ओबेसिटी के बारे में कहा जाता है कि 1000 बीमारी की एक वजह। अक्सर हम इसे, जैसे कि डॉक्टर शशि आलोक और मिसेस स्वाति जैन ने बोला कि हम इसे एक कॉस्मेटिक कंसर्न लेते हैं, हम अच्छे दिख नहीं रहे हैं। हम अच्छे दिख नहीं रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे नहीं हैं। हमारा लुक हमारे कपड़ों से अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम इनसाइड बीमार हैं, अगर हम ओबेज हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों में पड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। हम बात करेंगे कि ओबेसिटी होती क्या है। पहले हम ये समझेंगे ओबेसिटी हम कहते किसे हैं, फिर हम ये समझेंगे कि हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं कि ओबेसिटी, मैं ओबेज हूं या नहीं, नॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, इसके अलावा क्या कॉजेज हैं ओबेसिटी के, कितने टाइप की ओबेसिटीज होती हैं, और हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर हम ओबेज हैं तो होम्योपैथी में किस तरह का ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए ओबेसिटी के लिए, कौन से ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करके ये पता कर सकते हैं कि ओबेसिटी क्यों है, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि डाइट और मैनेजमेंट किस तरह से ओबेसिटी को ठीक कर सकती है। मैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान आपको हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के सही सही जवाब दे पाऊं। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन से इसको स्टार्ट करना चाहता हूं। Here we are. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ओके, पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आप सभी लोगों का क्लिनिका अमेरिका होम्योपैथी की तरफ से। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, प्रिवेंशन फर्स्ट। ओबेसिटी के बारे में कहा जाता है ईट वाइज ड्रॉ बाय साइज, सही खाएं और साइज में रहें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट वाइज डाइट मैनेजमेंट एंड होम्योपैथी। पहले हम बात करेंगे ओबेसिटी होती क्या है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वेट बढ़ गया है, वो वेइंग मशीन पे खड़े होकर देखते हैं उनका वेट बढ़ा हुआ है, शायद वो ओबेस है। लेकिन वेट के बढ़ने को ओबेसिटी नहीं कहा जाता है, फैट के बढ़ने को ओबेसिटी कहा जाता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है। मैंने पहले भी बोला, दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे हैं, आप हेल्दी हैं। अगर आप ओबेज हैं तो आपको इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बहुत तरह के कैंसर्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन का एक काम है। जैसे हमारा लीवर का काम होता है फैट का लाइसिस करना, फैट को तोड़ना।
जब हम लीवर को बहुत ज्यादा काम देना शुरू कर देते हैं, बहुत फैटी डाइट लेना शुरू कर देते हैं और हमारा लीवर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो उस फैट को या तो सर्कुलेशन में आगे बढ़ा देता है या ये सेंट्रलाइज ओबेसिटी हो जाती है, जिसे हम टमी पे बोलते हैं, हमारे टमी बहुत बढ़ गया है। तो होता यह है कि एट द एज ऑफ 20 हम धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अगर हमारी लाइफ डाइट स्टाइल और एक्टिविटीज ठीक नहीं है तो। और ये फैट हमारे सर्कुलेशन में जाता जाता है और एट द एज ऑफ 50 हमको पता चलता है कि हमारा हार्ट ब्लॉक हो गया है। तो ये पूरी प्रोसीजर एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं होता आज आपने बहुत सारी फैटी डाइट ले ली और कल आपका हार्ट ब्लॉक हो गया। तो इसका ये मतलब है कि जो फैट आप ले रहे हैं, अगर उस फैट को आप खुद अपनी तरफ से बर्न नहीं कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। इससे पहले जो मेरे वेबिनार हुए, इससे पहले हेयर के ऊपर एक वेबिनार था और उसके बाद डायबिटीज पे भी हमने एक वेबिनार रखा, और उन दोनों में मैंने ये बात कही, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से है, तो उसको ट्रीट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। अगर बारिश के मौसम में आपकी रूफ से पानी आ रहा है और आप रूफ को अंदर से कवर करवा दें, तो पानी आना बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि पानी कहां से आ रहा है, और वो जगह आप ठीक नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसका ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आप ओबेज हैं क्यों। अगर आपको ओबेसिटी के बारे में पता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं। और होता यह है कि हमारे बॉडी का सरफेस एरिया जितना बड़ा होता है, हमारे हार्ट को उतना ज्यादा काम करना होता है, और हार्ट भी एग्जॉस्ट हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज होती है। और फैट बढ़ने की वजह से हमारे जो विसरा होता है, विसरल फैट बढ़ता है। और जो किडनी है, किडनी के आगे और पीछे रेट्रोपेनियल जो स्पेस होता है, वहां पे फैट जब इकट्ठा होना शुरू होता है तो वो किडनी को कंप्रेस करता है। जब वो किडनी को कंप्रेस करता है तो प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कैंसर्स के बारे में, तो ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, और भी कई तरह के कैंसर सिर्फ ओबेसिटी की वजह से होते हैं। और देखें, ये ऐसा नहीं है कि हमने ताली बजाई और ओबेसिटी खत्म हो गई। ये एक प्रोसीजर है, एक साइंटिफिकली प्रोसीजर है। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो ओबेसिटी हमारी ना खत्म होगी, हम फिट होंगे और लॉन्ग लाइफ हम थिन और फिट रहेंगे। ये अगर आपने ऐसी कोशिश की, कुछ डाइट को चेंज कर लिया फॉर अ टाइम बीइंग, और आपने अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़े वक्त के लिए ठीक कर लिया और आपने बहुत सारा वेट लूज कर लिया, फिर उसके बाद आप फिर से वैसे ही चीजें फॉलो करने लगे, तो इसकी वजह से दोबारा आपको ओबेसिटी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि हम ओबेसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि ओबेसिटी होती कैसे है। देखिए, ये मैंने एक फॉर्मूला यहाँ शेयर किया है आप लोगों से। मेल और फीमेल में ये फॉर्मूला सेम होता है। बेसिकली हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमारे पास वेइंग मशीन होती है। वेइंग मशीन दो तरह की होती है। एक वेइंग मशीन नॉर्मल होती है, जिसपे खड़े होने के बाद आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं और आपको लगता है वेट शायद ज्यादा है, लेकिन आप उसमें अपना बॉडी मास इंडेक्स नहीं देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते हैं कि आपके बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में मसल्स परसेंटेज, वाटर परसेंटेज, विसरल फैट, बोन मास, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, ओबेसिटी, बॉडी एज आपकी कितनी है। ये आप नॉर्मल वेइंग मशीन से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उससे अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, बीएमआई को हमने इक्वल टू कर दिया वेट। पहले आपको अपना वेट किलोग्राम में लेना है, फिर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका वेट है 70 केजी और आपका हाइट जो है 175 सेंटीमीटर है। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आपका वीएमआई आता है 22। अब ये 22 नॉर्मल है या नहीं,
ये आपको पता होना जरूरी है, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ये देखिए एक चार्ट है जिसमें हमने बॉडी मास इंडेक्स शो किया है और हमने बताया है ब्लू कलर से रेड कलर में। अब ब्लू कलर में देखेंगे जिसमें बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है, मतलब ये अंडरवेटेड है। अंडरवेटेड होना भी अच्छी बात नहीं। अंडरवेटेड होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं, बहुत सारे मेडिकल कंडीशन हमें आ सकती हैं। अगर हम ग्रीन कलर में देखेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स शो कर रहा है 18.5 टू 24.9। ये एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है। अगर हमारा इंडेक्स हमारा बीएमआई 24.9 तक है तो फिर हम नॉर्मल है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। येलो कलर में हमने देख रहे हैं, जैसे हम बाजार में जाते हैं और रेड लाइट होती है तो हम वहां पे रुक जाते हैं, फिर येलो लाइट होती है रेडी टू गो और ग्रीन लाइट पे हम चलने लग जाते हैं। वैसे ही 25 पे जब आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है या वो 29.9 तक रहता है तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि अब हमें सुधर जाना चाहिए। अब हमें अपनी बॉडी के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। अब हमें ये कह के खुश नहीं होना चाहिए अरे हम तो खाते पीते घर के हैं, क्योंकि खाते पीते घर के होना अच्छी बात है लेकिन फिट रहना उससे ज्यादा अच्छी बात है। अब जब ये बॉडी मास इंडेक्स 30.0 से 34.9 तक पहुंचता है तो ये कहा जाता है कि हम ओबेज हैं, हमें ओबेसिटी है। ये भी सही वक्त है कि हम अपने आप को वापस लेकर आए। लेकिन जब ये 34.9 को क्रॉस करके 35 पे पहुंचता है तो वो कंडीशन होती है एक्सट्रीमली ओबेस की, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मेडिकल कंडीशन फेस करना होती हैं। हमारे जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, हमारा चलना फिरना ठीक नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें बॉदर करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास एक पेशेंट आया और हमने उसका बीएमआई चेक किया और इट वाज 30 और वो शॉक्ड हो गया कि मेरा बीएमआई 30 है, इसका मतलब मैं फिट नहीं हूं। और इत्तेफाक की बात वो एक बॉडी बिल्डर था। उसने मुझसे पूछा सर मेरा बीएमआई 30 आ रहा है, इसका मतलब मैं फिट नहीं हूं। तो मैंने उसे किस तरह समझाया मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपको दो पिक्चर नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर में और एक ऑरेंज कलर में, और इन दोनों का बीएमआई 30.7 है और इन दोनों की हाइट 5'11" है, मींस 180.3 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। तो अब दोनों का बीएमआई अगर 30 है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों ओबेसिटी में आते हैं? नहीं। देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इनके फैट परसेंटेज में। आप ब्लू कलर में देखेंगे उसका फैट परसेंटेज है 5%, और अगर आप ऑरेंज कलर में देखेंगे तो उसका फैट परसेंटेज है 30%। इसका यह मतलब है कि जो बॉडी बिल्डर है उसके मसल्स का वेट ज्यादा है, उसके बॉडी में फैट का परसेंटेज कम है, तो वो ओबेसिटी में नहीं आएगा। लेकिन जो ऑरेंज कलर में है उसका फैट का परसेंटेज 30% है और उसका वेट जो है वो हायर साइड में है। तो अगर बॉडी, मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि वेट के ज्यादा होने को हम ओबेसिटी नहीं कहते हैं, फैट के ज्यादा होने को हम ओबेसिटी मानते हैं। तो अगर आप फैटी हैं तो आप ओबेज हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपका बीएमआई अगर बढ़ा हुआ भी है तो हो सकता है वो बीएमआई आपका आपकी मसल्स की वजह से बढ़ा हो। अब हम बात करते हैं कॉमन कॉजेस के बारे में कि क्या ऐसे कॉजेस हैं जो जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, हम ओबेज हो जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आज आपने जितनी कैलोरीज ली वो कैलोरीज बर्न होना जरूरी है। अगर वो कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं तो वो एड ऑन हो जाती हैं और एड ऑन होने की वजह से ओबेसिटी हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आपने 2000 कैलोरीज ली और आपने बोला कि मैं तो बहुत काम करती हूँ, अक्सर हाउस वाइफ होम मेकर्स मुझसे बोलती हैं कि सर हम लोग तो बहुत काम करते हैं और हमारे घर में 3 फ्लोर हैं,
हम ऊपर से नीचे 3 फ्लोर ऊपर से नीचे जाते हैं, किचन में भी हम एंगेज रहते हैं, घर में बच्चों को भी हम देखते हैं। तो मैं दिन भर तो मतलब रेस्ट करती नहीं हूँ, तो फिर भी वेट मेरा क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना आपका ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज हमारी एनर्जी के लिए जरूरी होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं, वो जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है आपकी बॉडी में एनर्जी के तौर पे, आपने उसे यूटिलाइज किया है। लेकिन जो फैट आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, उसको ठीक करने के लिए आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल की जरूरत होती है। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज की जरूरत होती है, प्रॉपर फूड की जरूरत होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हम अपने मसल्स को टॉर्चर करते हैं, कंटिन्यूअस टॉर्चर करते हैं, तो हमारा फैट भी बर्न होता है, हमारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, और हमारा वेट भी ठीक होता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन वेट हमारा बढ़ जाता है। लेकिन देखने की बात यह होती है कि वो कम क्या खाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ओबेसिटी के लिए हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं और कहते हैं कि मैंने सर खाना खाना बंद कर दिया है, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? वो कहते हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मैं एक चॉकलेट एक आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो आप देखिए, एक चपाती जो होती है उसकी उसमें कैलोरी होती है 89, एक पराठा जो होता है उसमें होती है 189, एक चॉकलेट जो होती है उसमें होती है 200 कैलोरीज, एक आइसक्रीम जो होती है उसमें होती है 500 कैलोरीज। अब आपने एक आइसक्रीम खाई, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 5 से 6 चपाती खा ली। जब आप 5 से 6 चपाती खाएंगे तो आपका वेट कम कैसे होगा? कैलोरीज तो वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो जरूरी ये होता है कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, वो क्या फूड है। देखा गया है अलग अलग कम्युनिटीज में उनकी फूड हैबिट अलग होती हैं, अलग अलग कल्चर जिसमें कई तरह का फूड रिच फूड माना जाता है, उसमें घी तेल इस तरह के फूड लेना बहुत आम बात होती है। कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जिसमें इस तरह का फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम उन फूड को अवॉइड नहीं करते हैं, अगर हमें ये पता नहीं होता है कि जो हम ले रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है और हमने आज कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, तो हमारी ओबेसिटी कम नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे पहले ऐसे कॉज के बारे में जो ज्यादातर देखने को मिलता है, वो है ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग किस तरह की होती है? देखिए, हमारा ब्रेन जब हम खाना खाते हैं तो 25 मिनट के बाद हमारा ब्रेन ये बताता है हमको कि सर आपका पेट फुल हो गया है, अब आप खाना खाना बंद कर दीजिए। जबकि आप उससे 25 मिनट पहले ही खाना खाना बंद कर चुके होते हैं। लेकिन उस वक्त आप खाना कितना खा चुके होते हैं? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं जब तक खाऊंगा जब तक वो यहां तक नहीं आ जाएगी। मुझे ये फूड बहुत पसंद है, वो जब तक खाऊंगा जब तक यहाँ नहीं आ जाएगा। हम अपने भूख से ज्यादा खाना खाते हैं, और वो हमें पता चलता है 25 मिनट्स के बाद कि हमने जो खाना खाया है वो ओवर ईटिंग में हो गया, ओवर ईटिंग हो गई है वो। तो जरूरी क्या होता है कि अगर हमें पता है कि हम 4 चपाती खा सकते हैं, तो हमें 3 ही चपाती खाना है। अगर हमें पता है कि अभी मैं थोड़ी सी बिरयानी और खा सकता हूं या थोड़ा सा फूड और ले सकता हूं, तो फिर हमें वहां रुक जाना चाहिए। हमारे पेट में अगर जगह नहीं होगी तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, ज्यादा कैलोरीज इकट्ठी होंगी, वो कैलोरीज फैटी एसिड में चेंज होंगी, और आप खा तो शौक के लिए रहे हैं लेकिन आपका टमी आपको बताएगा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हम अक्सर अपने फूड में फैटी फूड, शुगर ज्यादा लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हाई हाई एनर्जी डेंसिटी वाले फूड लेते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में ज्यादा कैलोरीज होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे फूड्स लेते हैं जो कि साइज में तो कम है लेकिन उसमें कैलोरीज ज्यादा हैं, तो कम लेने के बाद भी आपके अंदर फैट ज्यादा बन सकता है। अक्सर लोग बाग जो डाइट लेते हैं वो डाइट होती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट।
अब ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्या होती है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसमें एक चार्ट नजर आएगा, उसमें 3 तरह के पैरामीटर्स हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट का मतलब होता है कि वो खाने के बाद हमारी बॉडी में शुगर धीरे धीरे बनना शुरू होती है। तो फिर हमारा जो पैनक्रियाज होता है, जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करता है और शुगर को लाइसिस करता है, तोड़ता है, उसको टाइम मिलता है और वो अपनी बॉडी में शुगर को इकट्ठा नहीं होने देता है। अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्या होती है, हमने लिया और शुगर हमारी बॉडी में शूट कर गया, लेकिन हमारा पैनक्रियाज अभी रेडी नहीं है इतनी इंसुलिन बनाने के लिए, वो उतनी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। अगर वो उतनी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है और ये फूड हैबिट हमारी बहुत लाइफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक है, तो फिर हम डायबिटिक हो सकते हैं। मैंने डायबिटीज वाले पोर्शन में आपको बताया था कि डायबिटीज मल्टी फैक्टोरल डिजीज है, बहुत सारे फैक्टर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। उसमें से एक फैक्टर ओवर ईटिंग भी होता है। ओवर ईटिंग के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पैनक्रियाज को एग्जॉस्ट कर देते हैं, हमारे इंसुलिन के सिक्रीशन को कम कर देते हैं और हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को हाई कर देते हैं। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम जो भी खाना खा रहे हैं, अगर हम ओबेज हैं, अगर ओबेज नहीं है तब भी, और ओबेसिटी आ गई है तब भी, हम जो खाना खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए ये कौन से इंडेक्स की डाइट है। लाइक ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है। लो फाइबर डाइट भी हम अक्सर लो फाइबर डाइट लेते हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। हाइब्रिड फूड्स इंडिया में देखने को कम मिलते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में ये देखने को मिलता है कि वो साइंटिस्ट ट्राई करते हैं कि एक फूड को दूसरे फूड से मिक्स करके तीसरा फूड बनाया जाए। तो वो तीसरे फूड में टेस्ट तो डिफरेंट होता है और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं और उसमें कैलोरीज हाई होती हैं और हमें थोड़े टाइम के लिए ये लगता है कि ये फूड, ये तो हम फ्रूट ले रहे हैं और अगर किसी डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है यू हैव टू टेक मोर फ्रूट्स इन योर फूड, तो फिर इसमें क्या नुकसान है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो नेचुरल फ्रूट है या फिर हाइब्रिड फ्रूट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे फूड होते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम कलर देख के या साइज देख के लेते हैं। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं और हमें नजर आते हैं टोमेटो, इसका कलर कितना अच्छा है, इसका कलर तो हमें बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, इसका साइज भी बहुत अच्छा है, और हमें ऐसे टोमेटोज पसंद नहीं आते जो ग्रीन हो, येलो हो, तो हम बोलते हैं नहीं ये तो लुक वाइज भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमें दिखता है कि अरे ये तो कितना बड़ा साइज है, तो हमको ये ले लेना चाहिए। बेसिकली पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें फ्रूट्स के होती हैं, वेजिटेबल के साथ होती हैं, और वो वेजिटेबल लेने से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को आपको फेस करना पड़ सकता है। उसमें से एक हेल्थ इश्यू ओबेसिटी भी है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप सब्जी भी खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये ऑर्गेनिक है, ये सब्जी हाइब्रिड है, इसमें पेस्टिसाइड यूज किए जा सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये पता है तो आप बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं तो दाल रोटी खाता हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वीगन हूँ, लेकिन क्या आपको पता है जो सब्जी आप खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड है या फिर उनको सही करने के लिए, पकाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए ये आपको बेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है, इस कोविड एरा में भी हमने देखा, लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और वो घर पे थे, और कई लोगों की जॉब नहीं भी गई तो वो जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम तो करते हैं, बैठे रहते हैं और डाइट भी लेते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और डाइट अच्छी ले रहे होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस टाइम उनकी डाइट बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, वो उनका मोबिलिटी कम हो जाती है, वो इमोबाइल हो जाते हैं। उसकी वजह से
फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, लेकिन हमने देखा कि कोविड एरा में बहुत सारे लोगों का बिजनेस, बहुत सारे लोगों की जॉब में उनको काफी नुकसान हुआ और उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें एंजाइटी रहती है और एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से वो ज्यादा खाना खाते हैं और उसकी वजह से उनको ओबेसिटी हो जाती है। उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अलग अलग तरह के कैंसर्स, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, लिपिड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ये जब आपकी देखिए, मैं डायबिटीज और ओबेसिटी को इसलिए ज्यादा मैच करता हूं क्योंकि ये दोनों मल्टी फैक्टोरल कंडीशन है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, लाइक आपकी डाइट हैबिट ठीक नहीं है, आप सेडेंट्री लाइफ सेडेंट्री लाइफ है, लाइफ स्टाइल है आपकी, तो ये आपको ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों साथ में गिफ्ट दे देंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा अक्सर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी से पहले अक्सर फीमेल बोलती हैं कि सर मैं जब शादी नहीं हुई थी तो मैं थिन थी, स्लिम थी, फिट थी, शादी के बाद भी ज्यादा कोई इशू था नहीं, प्रेगनेंसी में मेरा वेट बढ़ा, उसके बाद डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद भी वेट कम नहीं हुआ, अब ये वेट बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है सर? मैं इतना ज्यादा कैलोरीज लेती भी नहीं हूँ, इतना फूड लेती भी नहीं हूँ, तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली होता यह है कि जब बेबी वॉर्म में होता है तो वो माँ से सारी वो चीजें ले लेता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसे आयरन की जरूरत है तो वो माँ से आयरन ले लेगा जो कि माँ की बॉडी में पहले से स्टोर है। अगर उसे कैल्शियम की जरूरत है तो वो माँ से कैल्शियम भी ले लेगा। वो सारे न्यूट्रिशन माँ से ले लेता है। अब जरूरत होती है माँ को कि वो अपने आप को उन सारे न्यूट्रिशन लेके ठीक करे जो हो सकता है डिलीवरी की वजह से या सॉरी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बॉडी में कम हो गए। लेकिन अक्सर हमने इंडियन वुमेन्स और एशियन वुमेन्स को देखा है कि वो डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं देती हैं। डिलीवरी के बाद डॉक्टर उन्हें एडवाइस करता है यू हैव टू टेक आयरन सप्लीमेंट, यू हैव टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट, बट दे ऑलवेज अवॉइड द थिंग्स। वो बोलती है नहीं, वी आर टेकिंग प्रॉपर फूड बट दिस इज ओके फॉर मी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर आपके बॉडी में सीरम फेरेटिन, स्टोर्ड आयरन जिसे हम कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 to 291, अगर वो 10 है या 20 है तो देखिए कितनी बड़ी रेंज है। इसका मतलब ये है कि वो डेफिशिएट है। आपको इन्वेस्टिगेशन में ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 80 से कम है तो वो डेफिशिएट है। इसका ये मतलब है कि बॉडी में जो स्टोर था अब वो नहीं है। तो उस स्टोर को प्रॉपर करने के लिए आपको सप्लीमेंट भी लेना पड़ेंगे विथ डाइट। मतलब डाइट तो ले ही रहे हैं आप, लेकिन सप्लीमेंट भी लेना पड़ेंगे। डिलीवरी के बाद वुमेन्स की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत स्ट्रेस में होती है, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती है। इन सब की वजह से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है। तो कई बार देखने को मिला है कि डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद अक्सर वुमेन्स को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, मतलब थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि उनकी डाइट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वेट उनका फिर भी पुट होता जा रहा है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है। हम आगे बात करेंगे उन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें कराना चाहिए। लेकिन जरूरी ये है वुमेन्स के लिए जिसका डिलीवरी हो गई है कि वो अपने फूड पे तो ध्यान दे, लेकिन एक्सरसाइज भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिलीवरी होने के 2 मंथ के बाद यू हैव टू स्टार्ट लाइट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जो आपके जॉइंट्स और आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी को एक्टिव कर सके। आप लाइट
एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं, प्रॉपर डाइट स्टार्ट कर सकती हैं। अक्सर फीमेल कहती हैं कि मेरा बच्चा फीड करता है तो मैं एक्सरसाइज करूं क्या, या फिर मुझे डाइटिंग करना चाहिए क्या। मैं कभी भी किसी को नहीं कहता हूं कि आपको डाइटिंग करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपको वो सारे न्यूट्रिशन लेना चाहिए जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, और उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे फैट जल्दी से बढ़ता है। फैटी डाइट हुई, और शुगर हुई, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, तो जो इसे हम पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी कहते हैं। तो जो भी वुमेन्स जिनकी डिलीवरी हो गई है, आप देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि आपने करिश्मा कपूर को देखा। करिश्मा कपूर की फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद करिश्मा कपूर का वेट बहुत तेजी से पुट ऑन हो गया। फिर कुछ एक्सरसाइज के बाद, प्रॉपर डाइट के बाद वो शेप में आ गई। अभी दूसरी डिलीवरी हुई है, फिर से वेट बढ़ गया है, और अभी फिर से वो एक्सरसाइज और डाइट पे आ गई हैं, और आई होप कि उनका वेट फिर से ठीक हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि करिश्मा कपूर सेलिब्रिटी हैं तो वो कर सकती हैं और हम नहीं कर सकते हैं। जो काम आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने डाइट को मेजर करें कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है। आप अपनी एक्टिविटीज को देखें। आप देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि वेट पुट होने के बाद हमें थकान ज्यादा होना महसूस हो जाती है, और थकान होने की वजह से हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि नहीं ये तो होना ही था, वो तो होना ही है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये होना था और होना है तो ठीक है, लेकिन बाद में ये एट द एज ऑफ 40 आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। जब आपको पता चलता है कि अब आपके नीज प्रॉपर काम नहीं करते हैं, आपको पता चलता है आपको बैक एक बहुत रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि डिलीवरी के बाद जो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हुई है, आपने उसकी रिकवरी नहीं की। जो फैट आपकी बॉडी में आया है, आपने उस फैट को बर्न नहीं किया है, उन कैलोरीज को बर्न नहीं किया है, अपने आप को शेप में लाने की कोशिश नहीं की है। फिर हम जाते हैं सेकेंड डिलीवरी की तरफ, और अगर हमने फर्स्ट और सेकेंड डिलीवरी के बीच में अपने आप को फिट नहीं किया है, तो जो वेट आपका है वो वेट प्लस ही होना है, माइनस तो नहीं होगा। अगर आप एट द जब आपकी मैरिज हुई थी, आपका वेट 50 केजी था, प्रेगनेंसी के दौरान वो 60-65 केजी हो गया, डिलीवरी के बाद वो 60 केजी रहा। दूसरी जो आपको दूसरा बेबी जब हुआ, फिर उसने 10 to 20 केजी वेट को पुट कर दिया। अब आपका वेट 50 से 80 पहुंच गया। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं बची कि आप एक्सरसाइज करें, आप प्रॉपर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर पाए। तो वो वेट आपको एट द एज ऑफ 40 बहुत डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब ओबेसिटी आ गई है, आप उसको उसी टाइम चेक करें, उसे उसी टाइम ठीक करें, और कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक नहीं है तो उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे डिजीज के बारे में, कि कौन सी डिजीज है जिसमें ओबेसिटी हो जाती है। अक्सर फीमेल कहती हैं कि मैं खाना कम खाती हूँ लेकिन मैं मोटी हो रही हूँ। तो सबसे बड़ी वजह होती है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड डिसऑर्डर। देखिए, थायराइड से दो तरह की, थायराइड का जो काम होता है आपकी बॉडी को मेंटेन करना होता है, लेकिन जब इसके हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो दो तरह की कंडीशन आती है। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, और एक होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आप खाना अच्छा खा भी रहे होंगे लेकिन आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा। आप बोलेंगे मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की, मैं खाना भी अच्छा खा रही हूँ लेकिन वेट मेरा बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो ये भी ठीक नहीं है। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? अक्सर हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा हार्ट बहुत तेज बीट करने लग जाता है, हमें महसूस होता है रात में सोते टाइम कि मेरा दिल तेज धड़क रहा है। हमें नींद प्रॉपर नहीं आती, हमें पसीना ज्यादा आता है, हमें प्यास ठीक नहीं लगती, हमें भूख ठीक से नहीं लगती, खाना कम खाते हैं फिर भी वेट बढ़ रहा होता है। तो अगर हम थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जिसे हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं, अगर हम हाइपोथायराइडिज्म को टाइम से देख लें कि ये प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो वेट बढ़ रहा है उस वेट को भी ठीक किया जा सकता है। अब कई फीमेल्स में देखा गया है, वो
मतलब बिफोर मैरिज भी देखा गया है, यंग गर्ल्स में देखा गया है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, उनके फेस पे एक्ने आ रहे हैं, वो जल्दी थक जा रहे हैं, और कई बार उनकी डाइट हैबिट भी ठीक नहीं है। अब अगर हमें नहीं पता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो फिर इस कंडीशन में ओबेसिटी हो जाती है। इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। तो अगर हमारी ओवरीज में सिस्ट है, तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो इरेगुलर हो जाता है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं विथ ओबेसिटी। आपको एक्ने भी होंगे, आपका हेयर फॉल भी होगा, आप जल्दी थक भी जाएंगे, और आप में एनर्जी भी नहीं रहेगी। तो अब जब तक हम ये पता कर लें कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो उसको क्योर करना, उसको ठीक करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक लाइन मिल जाती है, हमें समझ में आ जाता है प्रॉब्लम ये है, इस वजह से ओबेसिटी हो रही है। तो अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं तो हो सकता है ओबेसिटी भी ठीक हो जाए। एक सिंड्रोम होता है जिसे हम प्रेडर विली सिंड्रोम कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, और इसमें टमी बच्चों की बढ़ जाती है, और नीचे का जो पोर्शन है, थाइज वगैरह बहुत पतली रहती हैं। अगर हम इसको मैनेज करें तो हम ओबेसिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, जिसे हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी बॉडी जो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी को कई तरह से प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर वो ज्यादा तादाद में सिक्रीट होना शुरू हो जाए, तो उसकी उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम डेवलप होता है। और कई मेडिसिन जो हम बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं, प्रिडिसोलोन जैसे हुआ, और हम कई बार कई मेडिकेशंस लंबे टाइम तक लेते हैं जिसमें कॉर्टिसोल होता है, प्रिडिसोलोन होता है, और उसको ज्यादा लेने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम डिजीज हो जाती है, जिसमें ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा है तो उसको ठीक किया जा सकता है बाय द प्रॉपर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। इसके अलावा मेडिकेशन, अब कई बार देखने को मिला है, जो पेशेंट है उसने बोला है कि मेरी डाइट हैबिट ठीक है और लाइफ स्टाइल में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वेट पुट करता गया हूं काफी सालों से। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि वो डिप्रेशन में था और वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा था। तो कई बार देखने को मिला है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेने से भी ओबेसिटी हो सकती है। हमने देखा है एपिलेप्टिक अटैक, जिसे हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कुछ मेडिसिन जो कि 2 से 5 साल तक चल सकती है, जिसे हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कहते हैं। वो मेडिसिन लंबे टाइम तक लेने से भी ओबेसिटी आ सकती है। महिलाओं में देखने को मिला है, फीमेल्स में देखने को मिला है कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हार्मोन्स हैं, बेसिकली वो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जिस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। अभी हमने बात करी हार्मोन के बारे में, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की वजह से डायबिटीज भी होती है, कई बार पेशेंट को और भी साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा ओबेसिटी भी होती है। हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन, हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन लंबे टाइम तक लेने से, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से, लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करने से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो कि एलर्जी के टाइम ली जाती हैं, अगर लंबे टाइम से आप वो मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओबेसिटी के बारे में। आप इस फोटो को अच्छे से देखें, मैं जब तक एक गिलास पानी पीता हूं। आप इस फोटो में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो लोग भी ओबेस हैं वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि उनमें किस तरह की ओबेसिटी है। क्या उनकी ओबेसिटी नेक से और टमी तक है? क्या उनकी ओबेसिटी अपर एब्डोमेन पे है? क्या उनकी ओबेसिटी वेस्ट से नी तक है?
क्या उनकी ओबेसिटी में पूरा एब्डोमेन आ रहा है, क्या उनकी ओबेसिटी में लोअर एक्सट्रीमिटीज आ रहे हैं, क्या उनकी ओबेसिटी में होल एब्डोमेन आ रहा है विथ चेस्ट। अगर आपकी ओबेसिटी ऐसी है तो क्यों है, वो हम आगे बात करेंगे। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं उस ओबेसिटी के बारे में जो नेक से टमी तक होती है। कई लोगों को देखने को मिला है कि उनकी नेक बहुत मोटी है, चेस्ट और टमी भी उनका बहुत मोटा है, बैक में भी बहुत फैट है, लेकिन उनका लोअर एक्सट्रीमिटीज जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो थिन है, या फिर कहा जाए कि वो उतना फैटी नहीं है जितना ऊपर का हिस्सा है। तो इस तरह की ओबेसिटी अक्सर देखने को मिलती है उन लोगों में जिनको मीठा खाने का शौक बहुत होता है, जो अपनी डाइट में शुगर का इंटेक ज्यादा लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर फूड की जरूरत होती है, अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करने की जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको टाइप के बारे में सिर्फ बता रहा हूं। तो इस तरह की जो ओबेसिटी होती है उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपने डेली रूटीन में से शुगर को कट ऑफ करे, निकाले, और डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करे। दूसरी ओबेसिटी जो हमने देखा कि ये लोअर एब्डोमेन में है, ये आपके अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन को कवर कर रही है और बैक तक जा रही है। तो ये ज्यादातर क्यों होती है? जो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, या जो पेशेंट स्ट्रेस में होते हैं, जिनको ज्यादा शौक होता है खाना खाने का, एक्सेसिव स्वीट लेने का, फैटी डाइट लेने का, तो उस तरह के लोगों में इस तरह की ओबेसिटी देखने को मिलती है। अगर उनको स्ट्रेस है, अगर वो स्वीट ज्यादा ले रहे हैं, तो जरूरी ये होता है कि वो रूल आउट करें कि ये स्ट्रेस एंजाइटी किस वजह से है। काउंसलिंग की जरूरत हो तो वो डॉक्टर के पास जाएं और अपनी काउंसलिंग करवाएं, अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं और अपने डेली रूटीन में से स्वीट को कट ऑफ करें। ये जो तीसरी तरह की ओबेसिटी है जो आपको ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है और उन मेल में देखने को मिलती है जिनमें हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। तो इस ओबेसिटी को कहते हैं ग्लूटेन ओबेसिटी। ये आपके वेस्ट से आपके हिप और थाई को कवर करती हैं, और आप नी के नीचे वाला एरिया देखेंगे तो वो एरिया आपको थिन नजर आएगा। ज्यादातर इस तरह की ओबेसिटी मीनोपॉज के टाइम देखी जाती है और उन मेल में देखी जाती है जिनमें हार्मोनल डिस्टरबेंस है। ज्यादातर ये उनमें देखी जाती है जो इमोबाइल होते हैं, जो लोग ज्यादा काम बैठ के करते हैं और जिनकी सिटिंग बहुत लॉन्ग होती है, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। उस तरह के लोगों में ये इस तरह की ओबेसिटी देखने को मिलती है। इस ओबेसिटी में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो एक्सरसाइज जरूरी होती है। अगर वो स्मोकिंग करता है, अगर वो अल्कोहल लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना होता है। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो ये चेक करना होता है ये किस वजह से है, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अगर इसके लिए कोई मेडिसिन हो सकती है तो वो मेडिसिन लेना जरूरी होता है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और हमने बहुत काम किया है उन पे, और इस तरह के पेशेंट को हमने ओबेसिटी में बेटर भी किया है। अगर हम टाइप 4 देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए चेस्ट वाला एरिया है वो थिन है, जो लोअर एब्डोमेन है और पूरा एब्डोमेन कवर किया है, और वेस्ट से नीचे का पूरा एरिया थिन है। तो इस तरह की जो ओबेसिटी होती है वो थोड़ी सी डेंजर ओबेसिटी होती है। जब ओबेसिटी सेंट्रलाइज हो, सिर्फ एब्डोमेन को कवर कर रही है, तो ये आपके ऑर्गन्स, आपकी विसरा को भी प्रेशर दे सकती है, और इसके अलावा आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, तो ये ओबेसिटी लाइफ टाइम तक बनी रह सकती है। और अक्सर क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा लेजी जब हो जाते हैं जब हमारे एब्डोमेन पे फैट आता है। बॉडी बिल्डर में अच्छा बॉडी बिल्डर उन्हें माना जाता है जिनकी एब्डोमेन जो होती है वो थिन होती है। अक्सर हमने देखा है सिक्स पैक जिसे हम कहते हैं,
किसी को सिक्स पैक है तो वो उसकी बॉडी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी का अपर बॉडी बहुत अच्छी है, आर्म्स चेस्ट बहुत अच्छे हैं और लोअर बॉडी भी ठीक है, लेकिन अगर उसका टमी निकला हुआ है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और हेल्थ वाइज भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। अब ये 5th नंबर की जो ओबेसिटी है, जिसे हम वीनस ओबेसिटी कहते हैं, यूजुअली ये जेनेटिकली या इनहेरिटेड, अगर माता पिता को इस तरह की ओबेसिटी रही है तो देखने को मिलती है और अक्सर उन फीमेल में आ जाती है। ये ज्यादातर उस दौरान आती है जब प्रेगनेंसी होती है। तो अक्सर देखा गया है कि वुमन कहती हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी से पहले मैं ठीक थी, लेकिन अभी तो देखें मेरा लोअर एक्सट्रीमिटीज, मेरा हिप, मेरा थाई और मेरा नी के नीचे वाला हिस्सा बहुत फैटी हो गया है। और इस तरह के लोगों के लिए जरूरी ये है कि वो वॉक करें ज्यादा, वो सीढ़ियों से चढ़ें उतरें, ज्यादा पानी पिएं, वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है, स्टेयर क्लाइंबिंग की जरूरत है, वॉक करने की जरूरत है। उन सारी चीजों से, इस चीजों से निजात पाई जा सकती है। ओबेसिटी जो 6 नंबर पे है, हमने अक्सर मेल में देखा है कि चेस्ट से नीचे और पूरा एब्डोमेन जो कवर करती है, इन लोगों में जो जिनको बहुत भूख लगती है, जो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है और उनकी जो एक्टिविटीज हैं और उनका डाइट स्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर ज्यादा भूख लग रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं है। उनको ये चेक कराना चाहिए कि कहीं कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस तो नहीं है। हर चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। देखिए, मेडिसिन हर डिजीज के लिए है, लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो यू कैन नॉट टेक एनी मेडिसिन फॉर लाइफ टाइम, और वो मेडिसिन लेने से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ हमने 1 to 6 टाइप की ओबेसिटी को देखा और हमने बात भी करी कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस किस तरह की ओबेसिटी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहले भी डॉक्टर शशि आलोक और मिसेस स्वाति जैन ने आपको बताया कि ओबेसिटी किन किन चीजों की वजह से, ओबेसिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है। और ये कोविड एरा में जो ज्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं वो पेशेंट ओबेज हैं। ज्यादातर जो देखने को मिल रहे हैं डेथ, वो ओबेसिटी की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि वो ओबेसिटी उनके लंग को कंप्रेस कर रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, और ये वायरस आपकी लोअर अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी में जब जाता है तो डेंजर हो जाता है। इसलिए ओबेसिटी पे काम करने की जरूरत ज्यादा है। इससे हमें ब्लड प्रेशर, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया क्यों हो सकता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक भी आपको आ सकता है, रीनल स्टोन। क्या होता है, फैट जो होता है, कई लोगों में किडनी का स्टोन जिसे हम कहते हैं, पथरी जिसे हम कहते हैं, किडनी में वो किडनी में पथरी हो गई है, तो वो अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जिसमें फैट ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% उन्हीं लोगों में होता है, लेकिन मैक्सिमम उन्हीं लोगों में ये देखने को मिलता है जिसके बॉडी में फैट ज्यादा होता है। तो वो फैट ऑक्सलेट से कंबाइन हो जाता है, कैल्शियम को निकाल देता है, और फिर बाद में जाके कैल्शियम ऑक्सलेट या ऑक्सलेट कैल्शियम स्टोन फॉर्म हो जाता है। अक्सर ओबेसिटी की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन भी होते हैं। डिप्रेशन की वजह से भी ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी की वजह से भी डिप्रेशन होता है। इसको हम, अगर ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर कहते हैं, और अगर डिप्रेशन की वजह से ओबेसिटी हो रही है तो उसे सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर कहते हैं। ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। स्लीप एपनिया भी एक कंडीशन होती है, एक डिजीज होती है, जब बहुत जो ओबेज लोग होते हैं वो सोते टाइम उनको सांस लेना भूल जाते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है। तो अगर हम ओबेज हैं तो ये हमें एक्सट्रीम एज में इस चीज को फेस करना पड़ सकता है। हमने पहले बात की कि मल्टीपल कैंसर हैं, अलग अलग तरह के कैंसर हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। अब
हम ओबेज हैं, तो अब हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस वजह से ओबेसिटी है? ये कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कराने के बाद हम डायग्नोस तक पहुंच सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कई बार देखा गया है बॉडी स्वेलन हो जाती है, सूज जाती है। तो हमें पता होना चाहिए हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। हमने थायराइड के बारे में बात करी, थायराइड डिसऑर्डर है, तो अगर हम कितनी भी अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर थायराइड डिसऑर्डर को हमने ठीक नहीं किया तो ओबेसिटी बनी रह सकती है। HbA1c जो कि शुगर को बताता है, 3 मंथ की शुगर को बताता है। हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा शुगर का लेवल कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, हमें देखना है कि हमारा लीवर फैटी लीवर तो नहीं है, हमें सिरोसिस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं हम। लिपिड प्रोफाइल हमें बताती है कि हमारे सर्कुलेशन में लिपिड का क्या, कोलेस्ट्रॉल का कितना परसेंटेज है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। USG एब्डोमेन हमें बताता है, फीमेल में ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो USG हमें बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट लेंगे तो ओबेसिटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग भी होती है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमने खाना तो बहुत खा लिया था, न्यूट्रिशन उसमें कुछ थे नहीं और हम इसी की वजह से ओबेस हो गए। अब जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जो हमें स्लाइड का बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो ये था कि अब होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह की डाइट लेना चाहिए। और मैंने आज सुबह कोशिश की एक छोटी सी वीडियो बनाने की, जिसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जो इजी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और घर पे करके आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, आप अपने आप को, अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इससे पहले भी जो वेबिनार हुए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप डॉक्टर से नहीं मिले और डॉक्टर से नहीं मिलने के बाद, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर है, हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन। आपके बहन को अगर ओबेसिटी है और आपको भी है तो दोनों को एक ही मेडिसिन नहीं होंगी। तो वो मेडिसिन कैसे अलग होंगी, वो अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तभी डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री लेगा, केस हिस्ट्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालेगा, मियाजमेटिक अप्रोच के साथ आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा और हो सकता है वो मेडिसिन आपकी ओबेसिटी के लिए परफेक्ट हो और उससे आपकी ओबेसिटी जा सकती है। ये कुछ 5 मेडिसिन है जो मैं अक्सर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है। इसमें एक मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन भी, 2 मेडिसिन बेसिकली, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन देना जरूरी है। तो जो सबसे ऊपर मेडिसिन है वो फाइटोलेका है। फाइटोलेका आपके जिन लोगों को जिनकी भूख बड़ी अजीब तरह की होती है, ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, उनका हंगर पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है, तो उसे रेगुलेट करता है, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक नहीं है, उसको ये प्रॉपर करता है, जिससे वेट लॉस होता है। अगर आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर हो जाएंगी तो आपका वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है फ्यूकस। फ्यूकस मेडिसिन भी जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होते हैं बॉडी के अंदर उसको प्रॉपर करता है, डाइजेशन को ठीक करता है। ये उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है जिन्हें लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, वो जो खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपर, उनकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो है। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो कहा जाए होम्योपैथी में दी जा सकती है पेशेंट को ओबेसिटी में, वो है कैलकेरिया कार्ब। ये मेडिसिन ज्यादातर उन लोगों में दिया जाता है जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से वेट बढ़ रहा है, जिनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है। और ये अक्सर उन लोगों में भी दी जाती है जिनका वेट डिलीवरी के बाद बढ़ गया है, या प्रेगनेंसी में शुरू हुआ बढ़ना और डिलीवरी के बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है, तो ये बेस्ट मेडिसिन है उन फीमेल्स के लिए। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनको गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस होता है, जिनको एसिडिटी, जिसको बर्प्स आती हैं बहुत ज्यादा,
जिनको गैस फॉर्म होता है, जिनको मोशन प्रॉपर नहीं होता, और ज्यादातर वो लोग जो अपना वेट जल्दी जल्दी पुट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर फूड, उन लोगों में ये मेडिसिन अच्छा रोल प्ले करती है। और ये उन लोगों में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जिनके अभी हम टाइप की बात जब कर रहे थे तो हमने देखा था कि हिप और थाई, ये दो चीज हैं जहां पे फैट ज्यादा बन रहा है, तो उन लोगों के लिए ये परफेक्ट मेडिसिन होती है। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे हम नेट्रम फॉस कहते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी की वजह मतलब ये जो मेडिसिन है, अगर हम ये सिम्टम देखते हैं और हम ओबेस भी हैं, तो ये मेडिसिन लेके हम अपनी ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं, गेट राइट कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ओबेसिटी, मैंने पहले भी बात करी थी कि ये ऐसा नहीं है कि आपने इससे ओबेसिटी चली गई। बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली इसको फॉलो करेंगे तो फिर ओबेसिटी भी ठीक होगी, हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे, और लंबे टाइम तक हम हेल्दी बने रह सकते हैं। अक्सर लोग बाग बहुत जल्दी में होते हैं, घर में किसी की शादी है 3 महीने बाद, मुझे पतला होना है, तो वो ऐसी डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो 3 to 6 मंथ तक हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉपर मेडिसिन के थ्रू और प्रॉपर डाइट के थ्रू क्योर किया जा सके। सबसे पहले जरूरी ये होता है कि उसकी केस लिया जाए, केस हिस्ट्री लिया जाए। वो कहाँ, अगर वो नहीं है तो वर्चुअली लिया जा सकता है, फिजिकली लिया जा सकता है। केस हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो हर्डल हैं हमारी मेडिसिन में क्योर करने के लिए। तो अगर हमें केस टेकिंग प्रॉपर है तो हम डायग्नोज बना सकते हैं, डायग्नोज के अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हमें अपने डाइट जो ले रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत होती है। पहले भी बताया मैंने कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेट को लूज करें, ओबेसिटी को ठीक करें। हमारी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेना स्टार्ट करें। अगर पेशेंट को थायराइड है तो जरूरी ये है कि उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट चार्ट बनाया जाए। अगर पेशेंट को पीसीओडी है तो जरूरी है उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट चार्ट बनाया जाए। अगर उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके डाइट चार्ट को बनाना जरूरी है। इसके लिए हम पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट भी बनाते हैं, और एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हो गई हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, और वो वीडियो 5 या 10 सेकंड की है। उस वीडियो से हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे अपनी घर पे एक्सरसाइज करके, अपने ऑफिस में एक्सरसाइज करके अपने फैट को कम कर सकते हैं, कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। ये हमारी टीम है, डॉक्टर मजहर, डॉक्टर आसिफ, ये हमारी टीम जिसको हम सुपर 6 कहते हैं। डॉक्टर आलिया, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर माविया, डॉक्टर निदा, डॉक्टर योगिता, डॉक्टर भारती, इन सब का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। इन लोगों की मेहनत की वजह से हम अपने पेशेंट्स को ठीक कर पाते हैं, और इन लोगों की मेहनत की वजह से आज हम इस वेबिनार को भी सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाए हैं। अब बात ये है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हम इसको अगर समराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम किस वजह से है, हमारी ओबेसिटी किस वजह से है। क्या ज्यादा खाने की वजह से है, क्या किसी बीमारी की वजह से है, क्या मेडिसिन के ज्यादा इनटेक लेने, ज्यादा मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक लेने की वजह से है, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से है, किस वजह से है। अगर ये हम पहले डायग्नोज बना लेते हैं तो उसमें मेडिसिन और डाइट प्लान और जो एक्सरसाइज है जिम के थ्रू हम अपने वेट को लूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर शशि आलोक, डॉक्टर
मोनिका सबरवाल, मिसेस स्वाति जैन, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, बार बार इनवाइट करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि ग्लोबली मैं अपनी बात सब लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड की एक वीडियो शेयर करूंगा और उसके बाद मैं इस चीज को बोलूंगा कि स्वाति जी से आगे बढ़ाएं, डॉक्टर शशि आलोक से आगे बढ़ाएं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं एक वीडियो शेयर करता हूं आपसे। ये मैंने आज सुबह बनाई है ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या क्या है। बेसिकली इस वीडियो में जो चीज है वो ये है कि हम घर पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर पे एक्सरसाइज करने का ये तरीका है कि हम अगर जिम नहीं जा सकते हैं, और जिम में ज्यादातर बोला जाता है कि आपको कार्डियक करना है, आपको रनिंग करना है, और आप अभी कोविड जो का कई जगह पे लॉकडाउन है, जिम्स बंद हैं, लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास इतनी बड़ी मशीन भी नहीं है, वॉक करने भी वो बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, तो वो घर में कार्डियक कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसे मैं इंटेंस एक्सरसाइज कहता हूं। ये वो एक्सरसाइज है जो कम वक्त में आपका ज्यादा फैट बर्न कर सकती है, कम वक्त में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकती है। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली आप घर पे ही अपने वेट को कम कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। जो पहला ये मिक्स करा है मैंने एक्सरसाइज को, आप अगर इसी तरह से एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये कार्डियक है। हमें अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पैरेलल लेके जाना है। इसको हम स्क्वाट कहते हैं। स्क्वाट करने से हमारा, ये देखिए इस पोर्शन में आपको 90 डिग्री में जाना है, आपको बहुत नीचे नहीं जाना है और बहुत ऊपर भी नहीं रहना है, और अपने चेस्ट को और हिप को सही डायरेक्शन में स्किपिंग करना है। स्किपिंग हमारी पूरी बॉडी को एंगेज कर देती है, और फाइनली हमें नी टच करना है। ये भी आपके लव एंगल्स को और आपके एब्डोमेन को और आपके लोअर बॉडी को जो फैट है उसको ठीक करता है। तो इसमें आपने 4 तरह की एक्सरसाइज देखी। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं, इसे 2 तरह से किया जा सकता है। ये 4 एक्सरसाइज हैं, आप इसे अलग अलग करके करें। कैसे? जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10-10 के 3 सेट करें आप उसके। जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसे हमने स्क्वाट कहा है, उसकी भी 10-10 के 3 सेट करें। ये हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, बिगनिंग की बात कर रहे हैं। जो तीसरी एक्सरसाइज है स्किपिंग, आप जितनी भी कर सकते हैं 25 से स्टार्ट करें, 25 स्किपिंग, 25 उसके 3 सेट करें। ये अलग अलग सेपरेट करके, और अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो इन सबको मिक्स करके एक्सरसाइज करें। 15 से 20 मिनट तक कम से कम ये एक्सरसाइज आप करें तो आप अपनी काफी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अब मैं अपने इस वीडियो को शेयरिंग को स्टॉप करता हूं, और मैं डॉक्टर शशि आलोक और स्वाति जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सारी SPSR टीम का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। और अब मैं मिसेस स्वाति जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को आगे बढ़ाएं। Thank you so much, Dr. Asif, for highly inspiring time with us. We really appreciate the time you spared for us today despite of the busy schedule. The elocution and skill with which you led the audience through this webinar was simply amazing and impressive to watch. Your webinar has come really timely, as in this COVID pandemic, most of the people are suffering from consequences of being confined to their home and debarred of their routine strenuous workout regime, as a result of which they are indeed suffering from mental trauma of increasing weight and body disabilities due to excess weight gain. After getting guidance from your webinar today, and the video in which you showed how to do the exercises, I'm sure the benefits they would be availing now, and the possible changes they will be bringing back in the quality of life they're leading. Dr. Asif, as I can see here, the audience has really appreciated this session, and because of the deep interest, there are certain queries too. So I request you to kindly address the queries one by one as I read out them for you. Okay. So the first query we have is that why do kids have obesity, and is there any way to treat the obesity in the kids?
अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई रियली अप्रिशिएट जिसने भी ये क्वेश्चन किया है। बेसिकली क्या है कि आजकल जो लाइफ और डाइट स्टाइल हो गई है वो सबकी बदल गई है। हम जेनेटिकली इनहेरिटेड जो जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। अगर मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी बहुत ओबेज हैं तो हो सकता है कि जो बेटा हो बच्चा हो वो भी ओबेज ओबेज हो। लेकिन आज हम ये देखने को मिलता है कि अक्सर बच्चे खाना जब खाते हैं तब उन्हें मोबाइल दिया जाता है। तो माँ बाप अपने काम को कम करने के लिए बच्चे को मोबाइल देके खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। और ये रिसर्च है बेसिकली। जब मोबाइल नहीं भी थे तो लोग टेलीविजन को देख के खाना खाते थे, और वो जितना खाना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाना खा लेते थे। तो अगर आप टेलीविजन मोबाइल को देख के खाना खाते हैं तो ये ओवर ईटिंग में आता है। अब बच्चों को अगर ओबेसिटी है तो क्या हम उनको ट्रीट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, उनकी डाइट हैबिट को ठीक करके। अगर वो फास्ट फूड ले रहे हैं, अगर वो जंक फूड ले रहे हैं, तो उन जंक फूड को फास्ट फूड को उनकी डाइट में से एलिमिनेट करके और उनको हेल्दी फूड देके। अच्छा, अभी इस वेबिनार में हमने बात करी हाइब्रिड फूड्स की। हमें अवॉइड करना है हाइब्रिड फूड्स, हमें अवॉइड करना है प्रिजर्वेटिव चीज। अक्सर देखने को मिला है बहुत सारे ऐसे मिल्क आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है और वो हार्मफुल होते हैं। और हम उसे क्यों यूज कर सकते हैं करते हैं कि हम इजीली उसे कट करते हैं और बस उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट पी लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। तो ऐसे फूड से हमें बचना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए। अगर वो ओबेज हैं, डॉक्टर के पास लेके जाइए, किसी भी होम्योपैथी फिजिशियन के पास लेके जाइए। उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन देके उसकी डाइट को प्रॉपर करके हम बच्चों में भी जो ओबेसिटी है उसको ठीक कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Asif. The next question is that is bariatric surgery risky? देखिए, कोई भी सर्जरी जो होती है वो आपकी बॉडी को नेचुरल नहीं रहने देती है। बैरेट्रिक सर्जरी अक्सर इसलिए की जाती है कि आपके स्टमक के साइज को कम कर दिया जाए, और उससे आपका जब आप थोड़ा खाना खाएंगे आपका पेट भर जाएगा तो आप कैलोरीज कम लेंगे, और कम लेने की बाद जो है आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी सर्जरी हमें जब जाना चाहिए जब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो। कोई भी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपकी डेली एक्टिविटीज को बॉदर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आपको सर्जरीज अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर हम स्टमक को कट करके उसको स्ट्रेच कर वापस ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कार जरूर बनता है, और आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हो जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कोई भी सर्जरी एक स्कार छोड़ के जाती है, और उस स्कार से लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। Thank you, sir. Next question is that can obesity developed by heredity be cured? देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बच्चों में कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके पेरेंट्स हेल्दी हैं या ओबेज हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ओबेज हैं, तो बच्चे भी ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है हमने कई लोगों में जो बचपन में ओबेज थे वो आगे जाके बेटर हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया। हर ओबेसिटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल कम इन डाइट स्टाइल। स्लीपिंग पैटर्न आपका ठीक होना चाहिए, जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होना चाहिए, और हमें उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो बहुत कम टाइम में ज्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में भेज देते हैं। अगर बच्चा ओबेज है और आप उसे आइसक्रीम भी दे रहे हैं और आप उसे बर्गर भी खिला रहे हैं, तो वो फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और ओबेसिटी को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम जेनेटिक ओबेसिटी को भी ठीक कर सकते हैं बाय द प्रॉपर डाइट एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम मेडिकेशन के थ्रू ओबेसिटी को ठीक करते हैं तो क्या मेडिसिन स्टॉप करने के बाद ओबेसिटी रिवर्स हो सकती है? देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन रूट कॉज पे काम करती है। अगर आपको प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज की वजह से है, फीमेल में देखने को मिलता है, अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के लिए मेडिसिन दे रहे हैं और वो ठीक हो गया है और आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आए हैं वो हार्मोनल चेंजेस ठीक हो गए हैं, बैलेंस में आ गए हैं, तो फिर आप अगर मेडिसिन को नहीं भी लेंगे
तो आप ओबेज नहीं होंगे, आप में मोटापा नहीं आएगा। आप अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मोटे हैं, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं और आपने अपने डाइट में से प्रोटीन को निकाल दिया है, हाइपोथायराइडिज्म में जरूरी ये होता है कि प्रोटीन डाइट कम ली जाए या ना ली जाए, और जरूरी ये होता है कि एक्सरसाइज की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेडिसिन को बंद करने के बाद भी हम जो है ओबेसिटी हमें नहीं आएगी बेसिकली। Thank you, sir. The last question we have is that why do people gain more weight after quitting gym? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली देखें, अभी मैंने वेट के रिगार्डिंग पहले भी अपनी एक स्लाइड में बात की थी कि वेट के बढ़ने को ओबेसिटी नहीं कहा जाता है, फैट के बढ़ने को ओबेसिटी कहा जाता है। लेकिन कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि जो जिम करते थे उन्होंने जिम करना बंद कर दिया है, डाइट उनकी सेम है, वो जो जिम में जितना वर्कआउट करते थे और उस वर्कआउट के अकॉर्डिंग जो डाइट लेते थे, वो डाइट वो मेंटेन करते हैं जिम को बंद करने के बाद भी। तो अक्सर अगर हम वही डाइट लेते हैं और हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, तो फिर ओबेसिटी आ सकती है। Okay, sir. Sir, we have one more query that क्या आप कोई ऐसा डाइट पैटर्न या लाइफस्टाइल पैटर्न, स्लीप पैटर्न बता सकते हैं कि जिससे ओबेसिटी ना आए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं सबको बताता हूं, और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल वो नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कब आपको सोना है और कब आपको जागना है। जल्दी सोना और जल्दी उठना आपकी बॉडी को फिट रख सकता है। आपकी जो डाइट है उसमें ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड लेना, अपने डेली रूटीन में ये देखना कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। तो अर्ली स्लीप, अर्ली वेकअप, ये हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहते थे और हम इसको फॉलो करना भूल गए। हम क्योंकि अगर स्टडी में हमारी स्टडी पैटर्न ऐसा हो गया है कि हम लेट नाइट तक पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है वो हमसे हमें कुछ गिफ्ट देती है। बेसिकली वो गिफ्ट यही है कि अगर हमारा पैटर्न राइट नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न राइट नहीं है हमारा, अगर डाइट पैटर्न राइट नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। तो जरूरी ये है कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में से उन चीजों से निकाल दें जो थोड़ा खाने पे ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में लेके आती हैं। जंक फूड को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, वाटर इनटेक को ज्यादा करें, प्रोटीन अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जरूर लें, अपनी डाइट में आयरन, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन डाइट को फिट करें। Thank you so much, Dr. Asif. That's all for the questions, and I'm glad you reserved a few minutes to field the questions today. Your answers were really insightful, and I really appreciate your fervor and patience with which the questions were being dealt. And thank you to all my viewers to have stayed over so patiently and to have enthusiastically participated in this session today. We are gratified by your presence. Thank you so much, everyone. थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ। मैं एक यूट्यूब पर एक क्वेश्चन देख रहा था, शायद वैसे स्वाति जैन से रह गया। उसमें किसी ने पूछा है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बच्चे ओबीस हैं और बाहर वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं जा पाते, तो वो घर पर क्या करें ऐसा जिससे उनका देखिए, obesity ज्यादा obesity? ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सबके घर की बात है। अगर लॉकडाउन नहीं भी है तब भी प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को बिजी रखने के लिए उसे मोबाइल दे दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडोर गेम्स हैं वो हर इंसान कोशिश करे कि अपने घर में इंडोर गेम्स और गेम के अंदर ही डाइट को फिट करे। वो जैसे कि आजकल बहुत चैलेंज देखने को मिले, हस्बैंड वाइफ चैलेंज और एक्सरसाइज चैलेंज और 10 इयर्स चैलेंज। तो इस तरह के चैलेंज देखने को मिलते हैं। एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि बच्चों को प्रॉपर फूड का चैलेंज दें। आई हैव 2 डॉटर्स बेसिकली, और मैं उनके साथ चैलेंज ही खेलता हूँ। उनको बोलता हूँ कि वो वहां से भागते हुए आए, वो इंडोर गेम्स खेलें जिसमें फिजिकली वो इन्वॉल्व हो सकें, और उनको खाने का चैलेंज देता हूँ बेसिकली कि देखते हैं कि एक टाइम में कितने ग्रेप्स आप खा सकती हैं, कितना वाटरमेलन आप खा सकती हैं, तो वो विन होगा और उसको हम प्राइज देंगे। तो जरूरी ये है कि जो बच्चे घर में बंद हो गए हैं उनको चैलेंज दें, पेरेंट्स खुद उस चैलेंज में शामिल हों, मम्मी पापा भी शामिल हों उन गेम्स में, और फूड एक्टिविटीज करें
घर में कि ये कितना खा सकते हैं, फ्रूट्स ज्यादा लें, बच्चों को फ्रूट्स की हैबिट ज्यादा डालें, वो जरूरी है जिससे वो ओबेज ना होंगे। Thank you so much. Dr. Asif, one more question from the YouTube. Can we take homeopathic medicine without prescription or without guideline of physicians? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो कभी कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो आपको डायमंड भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये डायमंड सही है और इसके पास, हमारे पास इसका वो भी है, कार्ड भी है, तो वो डायमंड लीजिए। तो फिर अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे लेना चाहिए जो इसका सुपर स्पेशलिस्ट है, और कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मैंने आपसे 5 मेडिसिन शेयर की हैं, आप ये मेडिसिन भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की ना लें। Thank you very much, Dr. Asif. Over to Swati. Thank you so much, Dr. Asif. And we really understand that there are questions, but लोग शायद इस चीज को समझते नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट पे वर्क करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल दैट अ सिंगल मेडिसिन व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वन पर्सन कैन बी गिवन टू अनदर पर्सन आल्सो। So thank you so much for today's webinar and the knowledge with which so many people will be benefiting today. Thank you so much, Dr. Asif. Thank you very much. Thank you very much. Thank you to all of you.